أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين خالد المجاهدين رحمة للعالمين وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کی ہیں اور تم سے اس حال میں راضی ہوں کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اب دین اسلام کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور ایک جگہ سورہ آل عمران کی 19ویں آیت میں بتائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ اسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ تو اب یہ دین جو مکمل ہو گیا ہے اور اللہ کا پسندیدہ دین بھی ہے، اور اس کے تعلق سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اسلام کا جو ماننے والا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں۔ اسلام کے معنی ہے جو اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے ایک ہونے کے لیے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے تمام احکامات پر ایمان لانا اور قبول کرنا، یہ چیزیں اسلام میں شامل ہیں۔ اور پھر جو یہ کرتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، جو جھک گیا ہے اللہ کے آگے، جو جھک گیا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا کہ سورہ آل عمران کی 102ویں آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ٹھیک ہے، اسلام میں داخل ہو گئے، اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیے۔ اب یہاں پر ایک ذمہ داری پھر عائد ہوتی ہے، ایک ڈیوٹی آ گئی ہے مسلمان کو، جو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز پانے والے کو دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ ہی، جس طریقے سے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کچھ ظاہری اپنے حلیے بنا لیے اور کچھ تھوڑے سی عبادتیں کر لیے اور سمجھے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو گئے، بلکہ جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کس طریقے سے ڈریں گے؟ ابھی ہم تفسیر میں سنیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے جانتے ہیں، عالم الغیب ہیں، تو ہم کھلی اور چھپی ہر قسم کی بے حیائی اور برائی اور گناہ کے کام سے بچنا ہے۔ ہم چاہے تنہائی میں رہو یا لوگوں کے ساتھ رہیں، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور اس سے ہم کو حیا کرنا ہے۔ تو یہ حق ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، اور اس کو اللہ کے خاص بندوں نے بہت خوبی سے نبھایا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، اور تم کو موت نہ آئے، إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، بلکہ صرف اس حال میں کہ تم مومن رہو، مسلمان رہو۔ جس طریقے سے تم زندگی میں مسلمان تھے، آخری سانس تک تم مسلم ہی باقی رہو، اور پھر یہ اسلام قبول کرنے سے اور سانس کے اکھڑنے تک تمہاری یہ کیفیت رہے کہ تم مسلم ہی رہو، ہر حال میں ہمیشہ تم اللہ کے آگے جھکنے والے ہی رہو، کسی بھی طریقے سے اسلام کو چھوڑ کر دوسری چیز کو اختیار کرنے والے نہ بنے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے مومنین کے لیے۔ اب میں یہاں پر علامہ اقبال کا ایک شعر کہنا چاہتی ہوں، رمز قرآن آز حسین آموختم، یعنی کہ رموز قرآن جو ہے، قرآن کا رمز یعنی کہ سیکریٹ ہڈن میسیج جو اس کا ہے، ڈیپتھ کے جو میننگ ہے قرآن کے، صرف یہ لفظی ترجمہ نہیں، جو آج کل کئی لوگ جو ہے لفظی ترجمہ سن لے کر بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو دین بہت کچھ معلوم ہو گیا ہے، اور پھر یہ جو اپنے مسائل کو سیکھنے کی طرف نہیں دوڑتے ہیں، اپنے عقائد کو درست قائم رکھنے کے لیے کوشش اور فکر نہیں کرتے ہیں، ایک سمجھیے کہ ایک آمرانہ یا تکبرانہ انداز آ جا رہا ہے لفظی قرآن کا ترجمہ سیکھ کر لوگ جو اس طریقے سے ہو رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ قرآن کا جو ہڈن میسیج ہے، اس کی جو گہرائی ہے، جس کو معنی ہے، اس کے پوشیدہ جو میسیج ہے قرآن کا، وہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے سیکھا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے مجھ کو قرآن کے معنی سمجھ میں آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ آتش و شعلہ باندو
बंदोख्तिम, यानी कि आपने जो रोशनी की है, आपने जो आग लगाई थी करबला के मैदान में, जो रोशनी की थी, जिसकी वजह से इंसानियत को ये बात वाज़े हुई कि हक क्या है और बातिल क्या है। इंसानियत को ये बात मालूम हुई कि किस तरीके से मुसलमान को अल्लाह की इताअत के अंदर रहना है, और कितनी ही तकालीफ उसके सामने आ जाएं उसके बावजूद वो अल्लाह के अहकामात से दस्तबरदार नहीं हो सकता है। तो हम ये जब ये कह रहे हैं कि अल्लामा इकबाल का ये शेर, मुझको जो है कुरान की मुतअद्दिद आयतों में इमाम हुसैन की तस्वीर नजर आने लगी, इमाम हुसैन का किरदार नजर आने लगा। क्योंकि कुरान पाक एक ऐसा अल्लाह ताला का कलाम है, ऐसा मौजिज़ा है कि जो कारी इसके अंदर पढ़ता है तो उसको खुद अपनी तस्वीर भी उसके अंदर नजर आती है कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ। सहाबा इकराम और जो अल्लाह ताला के नेक बंदे रहे हैं, वो कुरान पाक के मुताले के वक्त वो अपने किरदार को कुरान में तलाश करते थे कि मैं इसमें कहाँ हूँ। तो क्या हम इमाम हुसैन के किरदार को, कुरान की आयतों को इमाम हुसैन के किरदार से समझने की कोशिश क्यों ना करें? क्योंकि मुताद्दिद आयतें ऐसी हैं जिनकी तफसीर हमको जो है, जिसके मायने, जिनकी गहराई हमको जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार से मिलती है। ये बात बहुत वाज़ेह है कि करबला के मैदान के बाद, करबला में जो सानिया हुआ, करबला में जो मैंने वाक़या रूनुमा हुआ जो अल्लाह की मशीयत से था, उसके बाद जो है तारीख में दो किरदार नमूदार हुए और हमारे सामने आते हैं। एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का किरदार आता है, एक यजीद का किरदार आता है। और यजीद कौन था, इमाम हुसैन के मुकाबिल कौन है? इमाम हुसैन के मुकाबिल जो शख्स था वो भी मुसलमान होने का दावा करता था। इमाम हुसैन के मुकाबिल जो शख्स था, जो लश्कर था, जो फौज थी, वो लोग भी मुसलमान होने का दावा करते थे। वो लोग भी कलमा पढ़ते थे, वो लोग भी नमाजें पढ़ते थे, वो लोग भी कुरान पढ़ते थे, वो लोग भी कुरान पर ईमान रखते थे। तो कई कुरान पाक की इतनी आयतें हैं कि जो पढ़ने से हमको हजरत इमाम हुसैन की अजमत मालूम होती है। सबसे पहले तो ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 153 में, कि ए ईमान वालों, यहाँ पर भी ईमान वालों से अल्लाह ताला मुखातिब फरमाते हैं कि ए ईमान वालों, मदद चाहो सब्र से और सलात से, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो हम देखते हैं कि सब्र का आला नमूना जो था इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पेश किया कि सब्र किसको कहते हैं। तारीख ये जानी कि सब्र के मायने क्या हैं, और आपने ये भी बताया कि कैसे ही मुश्किल हालात हों लेकिन मोमिन को नमाज छोड़ना नहीं है, बल्कि नमाज के जरिए मैदान जंग में भी वो अल्लाह से मदद तलब करता है और खुद के इस्तेकामत की कोशिश करता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन अल्लाह, सूरह तौबा की आयत नंबर 111 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन अल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनीन से उनके जान और उनके माल खरीद लिए हैं। किसके एवज में? भी अन्न लहुमुल जन्नह, कि उनके लिए जन्नत हो जाए, कि उनको अल्लाह ताला ने उनके माल और उनकी जान खरीदे हैं। मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं कि कितनी खुशनसीबी की बात है कि जान तो दी हुई उसी की है, और बंदा चाहे कितनी ही इताअत करे अपने परवरदिगार की। शायर कहता है कि हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ, कितनी ही इताअत करें, कितनी ही कुर्बानियां दे दें दीन इस्लाम के लिए, फिर भी बंदा ये सोचे कि मैंने तो कुछ हक अदा ही नहीं किया, क्योंकि दिया दिया हुआ सब कुछ उसी का था, उसी की राह में दे दिया। और वो परवरदिगार ऐसा रहीम और करीम है, और मोमिनीन के नेकियों की कदर करने वाले हैं। वो कहते हैं कि ऐ बंदे, ये तेरे चीजों का मैं खरीदार बनता हूँ। मोमिन से अल्लाह ताला खरीद रहा है उसकी जान को और उसकी माल को, सुभान अल्लाह। और वादा फरमा रहा है कि मैं तुमसे ये चीजें लेकर तुमको आखिरत में जन्नत का हकदार बना दूंगा। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि फयक्तुलूना व युक्तलून, ये क्या करते हैं? अल्लाह की राह में लड़े,
फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में लड़े, फयक्तुलून व युक्तलून, कि ये मारते भी हैं और मरते भी हैं अल्लाह की राह में। जो जुल्म करता है उसको, उससे मुकाबला भी करते हैं। वादन अलैहि हक़्क़ फी तौरात वल इंजील वल कुरान, यानी कि ये वादा है अल्लाह के ऊपर, ये सच्चा वादा है कि अल्लाह ताला उनको उनके अजर का जरूर बदला देगा। ये अल्लाह ताला न सिर्फ कुरान में बल्कि अल्लाह ने बताया है कि तौरात में भी ऐसा ही अल्लाह ने वादा फरमाया है, इंजील में भी इसी तरीके से वादा फरमाया है। तो गया मालूम हो रहा है कि जिहाद करना, जुल्म के खिलाफ खड़े होना, हक बात को बुलंद करना, ये सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने दीगर सहायफ मुबारका में भी इसका हुक्म दिए हैं कि ये काम इंसान को करना है। तभी तो हम देखते हैं कि जालूत के मुकाबले में दाऊद अलैहिस्सलाम गए, और इस तरीके के कई वाकयात तारीख में हैं कि पिछले उम्मतों में भी ये तस्वुर रहा है जिहाद का, हक गोई के लिए उठ खड़े रहने का, अल्लाह की राह में जान और माल को लगा देने का हमको वहां पर भी दर्स मिलता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तो ऐसे बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी जान को खुशी खुशी अल्लाह की राह में लगा दिया, जिन्होंने अपने माल को अल्लाह की राह में खुशी खुशी लगा दिया, जिन्होंने अपनी औलाद को अल्लाह की राह में बिछा दिया, और बिछा कर अल्लाह ने जब उनकी इस कुर्बानी को कबूल किया तो उन्होंने सजदा शुक्र अदा किया। ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में ऐसी बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, और अल्लाह से ज्यादा किसका खौल पक्का है, किसकी बात पक्की है, फस्तबशिरू बिबईकुमुल्लज़ी, तो बस अब क्या करो, खुशियां मनाओ। कैसी मुबारक तुम्हारे साथ मामलेदारी हुई है, कैसा बई व फरोख्त का ये मामला हुआ है अल्लाह और बंदे के दरमियान। कितने मुबारक हैं वो लोग जो अल्लाह ताला के इस एग्रीमेंट में शामिल हो जाते हैं कि अल्लाह ताला उनकी दुनिया की हकीर, मिट जाने वाली दुनिया की में जो उनका माल है, जो कि मिट्टी बनना है, जो कि उनके जिस्म है वो खुद भी जो मिट्टी बनना है, फना होना है, लेकिन ये फना होने वाली चीजों को हमारा परवरदिगार खरीद रहा है। खरीद कर क्या दे रहा है, हमेशा रहने वाली जन्नत दे रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बस इसके लिए तुमको चाहिए कि खुशी मनाए इस बई के ऊपर। और वज़ालिका हुवल फौजुल अजीम, और यही बहुत बड़ी अजीम कामयाबी है। बेशक ये बहुत ही अजीम कामयाबी है जो इंसान को इस दुनिया में मैसर आ जाए, उसकी हयात में उसको ये बात मिल जाए कि अल्लाह उसकी जान और उसकी माल का खरीदार हो जाए। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अर्राकिऊन अस्साजिदू, यानी कि अत्ताइबूना, तौबा करने वाले, आबिदूना, इबादत करने वाले। आप इन अल्फाज में, कुरान की इन आयात में, कुरान के इन पारों में इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत को देखिए। क्या वो ताइबून में शामिल नहीं है, वो तौबा करने वाले नहीं हैं? क्या वो आबिदून में शामिल नहीं है? कितनी इबादत आका हुसैन करते हैं। हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो लोग हैं, तौबा करने वाले हैं, इबादत करने वाले हैं और अल्लाह की हम्द करने वाले हैं, अल्हामिदून अस्साइहून, और इबाद रोजा रखने वाले हैं, अर्राकिऊन, और रुकू करने वाले हैं, अस्साजिदून, और सजदे करने वाले हैं। कैसे सजदे हैं हजरत इमाम हुसैन के और आपके साथियों के और आपकी आल के, कैसे सजदे हैं। जिनके बेटे को सज्जाद कहा गया, जिनके बेटे को जैनुल आबिदीन कहा गया, उनके वालिद का हाल क्या है, इबादतों का, उनके सजदों का, उनके रुकू का, उनकी हम्द का, उनके रोज़ों का, उनकी तौबा का, उनकी इबादत का क्या हम अंदाजा कर सकते हैं। और आगे असाजिदून अल आमिरून बिल मारूफ व नाहून अनिल मुनकर, और ये लोग वो हैं जो नेकियों का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकने वाले होते हैं। वल हाफिजून लि हुदूदिल्लाहि, और ये अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करते हैं। तो अल्लाह के हुदूद जो यजीद पामाल कर रहा था, अल्लाह के हुदूद जो यजीद की हुक्मरानी के जरिए शरीयत की जो धज्जियां उड़ाई जा रही थी, दीन इस्लाम को छोड़कर एक नया तर्ज जिंदगी जो दुनिया के सामने पेश कर रहा था, सहाबा इकराम की तौहीन कर रहा था, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन कर रहा था। ना सिर्फ तौहीन बल्कि कई सहाबा को कत्ल कर दिया गया, उनको
उन पर तरह तरह के मजालिम ढाए गए। ये ऐसा खबीस इंसान था जो शरीयत को बिल्कुल ही पामाल कर रहा था और हलाल और हराम को तक ये नहीं मानकर जिंदगी गुजार रहा था और लोगों को उसी तरीके से हुक्म दे रहा था। अब मैं उसकी ज्यादा तशरीह क्या करूं, आप अंदाजा कीजिए जिस शख्स के गले पर, जिन मासूम बच्चों के हुल्कों पर जो तीर चलाए गए, जो तलवारें चलाए गए, वो करते वक्त उनको जब अपना पैगंबर याद ना आए, उनको ये एहसास ना हो कि रुए जमीन पर इस मुबारक हस्ती से ज्यादा कोई दूसरी और हस्ती मौजूद नहीं है, जिसको ये एहसास ना हो, जिसको सामने खड़े हुए मौजूद हजरत इमाम हुसैन जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद दिलाते हैं, जो अल्लाह की याद दिलाते हैं, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से मोहब्बत करो क्योंकि अल्लाह ने तुम पर इनामात किए हैं, और अल्लाह की खातिर मुझसे मोहब्बत करो और मेरी खातिर मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। तो ऐसी शख्सियत का जमीन पर खड़ा होना, मौजूद रहना, उस शख्स को ना नबी की याद दिलाता हो, ना अल्लाह की याद दिलाता हो, ना शरीयत की याद दिलाता हो, ना दीन के पास की बात उसके पास आती हो, तो ऐसा शख्स कितना जालिम होगा जिसने इमाम हुसैन के साथ, आपके अहले खानदान के साथ इतना बड़ा जुल्म करवाया। और फिर उसके बाद अब लोग यहाँ पर मुख्तलिफ तावीलात देते हैं कि यजीद जो है बिलवास्ता इसमें शरीक नहीं था। यजीद बिलवास्ता शरीक नहीं था, लेकिन फौज किसकी थी? क्यों अल्लाह ताला जो है एक आदिल हुक्मरान को अर्श का साया अता करने का वादा किया है आखिरत में, और फिर जब इसका उल्टा हम देखें कि कोई जालिम हुक्मरान है, अपने आप को मुसलमान कहता है और शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है, तो उसका हशर आखिरत में क्या होगा? उसका हशर क्या होगा वो भी बताया गया कि मुनाफिक कौन होता है और मुनाफिक का मुकाम क्या है, मुनाफिक के लिए मगफिरत की दुआ मत करो, ये तमाम चीजें इस्लाम के अंदर मौजूद है। क्यों? उसके बाद हमने देखा ना सिर्फ ये करबला का में ये वाकया हुआ, उसके बाद तारीख ने ये देखा कि उसने मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया, उसकी फौज ने मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया, और फिर उसके बाद उन्होंने हुर्मत काबतुल्लाह पर भी हमला किया। ये ऐसे बद किरदार लोग थे। आप सोचिए कि अगर करबला में अगर हजरत इमाम हुसैन इसके खिलाफ खड़ा ना होते और अमर बिल मारूफ और नही अनल मुनकर के जिस फरीजे के तहत आप जो है मक्के से कूफे की तरफ कुछ किए थे, इसीलिए कि कूफियों ने ये लिखा था कि ए इमाम आप हमारे पास आइए, यजीद इस तरीके का है और हम उसकी हाथ पर बैत करना नहीं चाहते हैं। इस बात अलग है कि उन्होंने बाद में अपनी इस वादे से मुनहरिफ हो गए, पलट गए, लेकिन जब कोई इधर बुलाता है कि आप आए, हम आपको इमाम कबूल करते हैं, तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने यही कहा कि मैं अल्लाह के आगे क़यामत के दिन ये कहेंगे कि मैं हम लोगों ने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को बुलाया था, लेकिन ये हमारे पास नहीं आए, मैं ये सुनना नहीं चाहता हूँ, मुझको जाना है। और ये अल्लाह की मशीयत थी, इसकी खबर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी जा चुकी थी कि ये शहादत होगी, इस तरीके का मामला आपकी उम्मत आपके साहिबजादे के साथ करेगी, ये बात बता दी जा चुकी थी। तो ये अमर बिल मारूफ किस तरीके से करना है, ये बात हमको हजरत इमाम हुसैन बताते हैं। ना सिर्फ आप ये बताए कि सजदे तरह से करना है, रुकू किस तरीके से करना है, रोजा किस तरीके से रखना है, इबादत किस तरीके से करना है, तौबा किस तरीके से करना है, रुजू इल्लल्लाह किस तरीके से होना है, बल्कि आपने ये भी बताया कि अल्लाह अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर किस तरीके से करना है ये उम्मत को। और फिर ये कर कर आपने क़यामत तक के लिए एक वेरी क्लियर पिक्चर इस्लाम का बना दिया कि दिस इज इस्लाम, दिस इज हक, ये हक है, और दूसरी तमाम जो तरीके हैं, दूसरे जो तमाम रास्ते हैं, ये बातिल हैं। ये सिर्फ इस्लाम एक है, इस्लाम हक है, और इस्लाम को पर इस तरीके से कायम रहना है। ये आपने बताया कि इतने ही जुल्म तुम्हारे पर आ जाएं, लेकिन तुम जो है इस्लाम से फिरना नहीं है, वाला तमुतुन्ना, और तुमको मौत ना आए मगर ये कि तुम मुसलमान रहो। ये दर्स हमको करबला देता है, बताता है कि इतने मजालिम सहकर भी तुम अल्लाह की इबादत से, अल्लाह के बंदे होने से अपने मुंह को नहीं मोड़ोगे। फिर अल्लाह ताला क्या कहते हैं फिर आगे, वल हाफिजुना li हुदूदिल्लाहि, ये अल्लाह के हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। क्या कर रहे थे इमाम हुसैन करबला में? अल्लाह के हुदूद की हिफाजत के लिए ही आप वहां पर ले गए थे। इसलिए बहादुर यार जंग अलैहि रहमान ने कहा कि इमाम हुसैन ने अपने खून के जरिए क़यामत तक के लिए एक लकीर खींच दी है, ए लाइन ऑफ डिफरेंशिएशन।
a line of differentiation between हक एंड बातिल। इमाम हुसैन के खून ऐसा है जो चमक चमक कर क़यामत तक ये बताता रहेगा कि ऐ मुसलमानों, इधर रहो सीधी जानिब के ये हक है, ये हक है, ये इस्लाम है, ये अल्लाह और रसूल की इताअत इधर है, और उधर जब चले जाएंगे तो फिर ये बातिल के तरीके हैं। तो ये डिफरेंशिएशन जो उम्मत को मालूम हुआ है क़यामत तक के लिए, ये इमाम हुसैन के खून ने किया है। इसीलिए हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, के शाह हुसैन है, शहीनशाह हुसैन है, बादशाह हुसैन ही हैं। आप अपनी अकीदत का इजहार मुख्तलिफ तरीके से कर रहे हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, और आप कहते हैं कि दीन अस्त हुसैन, दीन क्या है? हुसैन का जो किरदार है वो दीन ही है। दीन पना अस्त हुसैन, दीन जो को जो पनाह मिली है, दीन को जो सुरखरुई मिली है, दीन को जो उसकी बखा मिली है, इस्तिकामत मिली है क़यामत तक के लिए, वो मिली है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों की वजह से। तो आपने कहा कि दीन पना अस्त हुसैन, और लोग इस पर भी एतराज करते हैं कि किस तरीके से ये कहते हैं। यहाँ पर मुझको मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक याद आती है कि आपने कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मैं हुसैन से हूँ यानी मेरी लाई हुई शरीयत, मेरा पेश किया गया दीन, ये हुसैन की तरफ से रहेगा। अगर इमाम हुसैन अगर यहाँ पर नहीं खड़े होते, ये कुर्बानियां आप नहीं देते, तो क़यामत तक के लोग ये समझते थे इस्लाम अपनी हकीकी शक्ल में मौजूद ही नहीं रहता था। अगरचे के कुरान मौजूद रहे, लेकिन इस्लाम पर अमल करने का ये यारा कोई मुस्लिम मुस्लिम नहीं करता था अगर इमाम हुसैन ये कुर्बानी ना देते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, ये दीन जिंदा रहेगा तो हुसैन के साथ जिंदा रहेगा। तो इसीलिए इसी को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्फाज में ढाला है कि दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सर दाद नादाद दस दस दर दस्त यजीद, के आपने अपना सर दे दिया, सर दाद दे दिया, सर दे दिया, ना दाद दस्त ना दिया अपना हाथ, दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया, यजीद की बैत को कबूल नहीं किया, यजीद की हुक्मरानी को कबूल नहीं किया, और इस बैत के एवज आपने अपना सर दे देना कबूल किया। हक़ के बिना ला इलाहा अस्त हुसैन, हक बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जो बुनियाद है, उसको जो इस्तिकामत मिली है, उसकी जो बुनियादें हिलाई जा रही थी, उसके अंदर जो जलजला बपा किया जा रहा था, उसके तालीमात को जो में एक जो है तफरीका लाया जा रहा था, उसको अलग तरीके से पेश किया जा रहा था, इसको जो है ख़त्म कर कर इसकी बुनियाद को मजबूत करने वाले कौन है? वो कौन सा किरदार है? वो हुसैनी किरदार है। वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, जिनकी वजह से इस्लाम को जो है बका नसीब हुई है, और इस्लाम क़यामत तक जो है इंशाअल्लाह अपनी पूरी आब और ताब के साथ जिंदा कायम रहेगा। और हर मुसलमान जो कोई मुसीबत में मुब्तला होगा, वो हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद कर कर अपने ईमान को बचाता रहेगा, और जालिमों के आगे अपने ईमान को नहीं छोड़ेगा। और फिर ये कहते हैं कि जे आतिशे वो शोला बंदोख्तिम, के आपकी इस लगाई हुई आग से, आपकी इस रोशनी से ही मैं हिदायत के शोले जमा करता हूँ। ये अल्लामा इकबाल, जिनको मुफक्किर इस्लाम भी कहा जाता है, उन्होंने इस तरीके से ये बात की है। अब हम देखते हैं कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये किया था, ये काम किस तरीके से था कि, और कई आयतें हैं मेरी बहनों, मैंने वक्त के लिहाज से चंद आयतों का इंतखाब की हूँ कि इसमें मुझको हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुझको किरदार नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू, कि जो लोग ईमान लाए, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 219 में कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की। क्या बताइए, हजरत इमाम हुसैन मोमिनीन के ग्रोह में शामिल नहीं है? क्या इमाम हुसैन हाजरीन मुहाजिर के उसमें शामिल नहीं है कि आपने मदीना से हिजरत की, मक्का गए, मक्के से हिजरत की, कूफा तशरीफ लाए, हाजरू वजाहदू, और जिन्होंने जिहाद किया फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, उलाइका यरजूना रहमतुल्लाहि, ये वही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह बहुत ज्यादा बख्शने वाला और मेहरबान है। इस तरीके से बहुत सी आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, फला तख्शहु वख्शुनी,
وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِی، تم بس مجھ سے ڈرو۔ امام حسین کا، آپ کا جو بے باکانہ عمل ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ آپ کو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں تھا، بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی خوف کے ساتھ جینے والی شخصیت ہے۔ اور اسلام کے لیے، شریعت کے لیے آپ نے اتنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ اور جو چیز ہے جو انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے، وہ مصائب جھیلنے کا حوصلہ دیتی ہے، وہ اسلام کی تعلیمات میں وہ شہید کا مرتبہ ہے۔ شہید کے مرتبے کے لیے بھی قرآن میں آیتیں آئی ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ تم یہ گمان بھی مت کرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ گمان بھی مت کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، ان کو مردہ، یہ تم گمان ہی مت کرو، یہ سوچو ہی نہیں۔ بل احیاء، یہ بلکہ زندہ ہیں، عند ربہم، اور اللہ کے پاس سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے، اور شہید کو شہید کہنے کا یہ ہے کہ اس کے سامنے جو ہے، شہید کے معنی ہے گواہ بننا۔ شہید کی پہلے چیز تو یہ ہے کہ اس کی ظاہری حیات جو ہوتی ہے، جو اس کے اوپر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں، اس کی تمام دنیا بھی گواہ بن جاتی ہے کہ یہ انسان کے پاس اتنی جو ثابت قدمی ہے، اس استقامت کی، اس کے ایمان کے، اس کے اعلیٰ درجے کی جو دنیا شاہد ہو جاتی ہے، وہ اس کو ایک اللہ کی نشانی بن جاتا ہے کہ مومن کے اندر اتنا پاور ہوتا ہے، یہ اتنے مظالم بھی سہ لیتا ہے، لیکن وہ راہ حق سے ہٹنا اس کے لیے گوارا نہیں ہے۔ یہ ایک دیکھنے والے ظاہری آنکھیں تو یہ دیکھتی ہے، لیکن شہید خود جو ہے، جو اس کو جو معاملات ہوتے ہیں، روح جب اس کی نکلتی ہے، قبض ہوتی ہے، اور یہ بات پکی ذہن میں رکھے کہ کسی کی تلوار میں یہ دم نہیں ہے، کہ کسی گولی میں یہ دم نہیں ہے، کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، یہ قوت نہیں، طاقت نہیں ہے کہ کسی انسان کو اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے کوئی کسی کو موت دے، ایسا اصول اللہ کے یہاں ہے ہی نہیں۔ اور ہم نے ابھی آج پڑھا کہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی ہے، یہ سنت ازل سے چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آنے والے کا وقت مقرر رکھا ہے اور ہر جانے والے کا وقت مقرر رکھا ہے۔ اس میں نہ ایک گھڑی آگے ہوگی، نہ اور ایک گھڑی پیچھے ہوگی۔ تو کوئی کسی کی جان لیتا نہیں ہے، جب وقت مقرر ہے اسی طریقے سے اس وقت پر ہی اس کی جان آئے گی، لیکن طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کس کی جان کس طریقے سے جائے گی یہ طریقہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ وقت مقررہ پر ہی جان جاتی ہے، لیکن جو ظلم سہتے ہوئے جو انسان کی جان نکلتی ہے، جو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے اس کو ستایا جا رہا ہے، ایمان کی وجہ سے اس کو ڈھایا جا رہا ہے، اور اس کو تکالیف دیے جا رہے ہیں، اور یہ ختم ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے بہت بڑے معاملے کرتے ہیں۔ بعض علماء کرام نے تو یہ کہا کہ شہید کی جب روح نکلتی ہے تو اس کو باری تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور شہید کی روح جو ہے سیدھا اللہ تعالیٰ کے دربار میں فرشتے لے جا کر پیش کرتے ہیں، اسی لیے اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی ہے، اور اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ مت کہو۔ کیا بات! اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کیا ہے شہید سے، کہ ہم اگر اپنے بچوں کو جو ہے کچھ اگر بات کہہ دیں، ہمارے متعلقین کو، یعنی ہمارے اپنے دوست احباب کو کوئی اگر کچھ کہہ دے، تو ہم کتنا چراغپا ہو جاتے ہیں، فوری ہم رسپونڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کو ایسا نہیں کہنا، یہ میں اس کو جانتی ہوں، یہ میرا بچہ ہے، میں اس کو جانتی ہوں، ہم اس طریقے سے گواہی دینے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم ان کو مردہ مت کہو، خبردار، تم ان کو مردہ مت کہو، تم سمجھنا بھی نہیں کہ یہ مردے ہیں، بلکہ یہ زندہ ہیں، اور تم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اللہ کے یہاں سے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس کے تعلق سے بہت سی احادیث ہیں، لیکن وقت کی طوالت کی وجہ سے میں ابھی ان احادیث کو پیش کرنے سے قاصر ہوں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق کا وہ قول مجھ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ جو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھ کو آپ کی راہ کی موت نصیب فرمائیے، اور شہید کی موت دیجیے، اور آپ کے حبیب کے شہر میں موت دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں یہی خواہش، میری اور تمام مومنین کے دلوں میں یہی خواہش پیدا کرے کہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ایک اعلیٰ و عرفہ موت کی تمنا کرتے ہوئے اس زندگی میں کو گزارے، یہاں کے زندگی کے جو لمحات ہیں وہ گزرتا ہوا چلے، کیونکہ جو شہادت کی آرزو نہیں رکھتا ہے
وہ منافق ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کے دل میں شہادت پانے کی آرزو ہوتی ہے۔ تو بہرحال میری بہنوں، ان احادیث سے، ان آیات سے، حضرت امام حسین کے اس کردار سے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کل جو تھوڑی سی بات پر جو لوگ ڈر جا رہے ہیں، بہک جا رہے ہیں، یہ چیزیں ہٹنی چاہیے۔ ہم کو جو ہے مومن کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ جب مصیبت دیکھتا ہے تو اس کا ایمان اور قوی ہو جاتا ہے، اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ باطل ہے، میرا رب حق ہے، میرے رب کے ساتھ میرا تعلق قائم رہے، اس بات پر مسلمان قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، تمام مسلمانوں پر اللہ کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ظالموں کے پنجوں کو موڑ دے، اہل اسلام کو اللہ تعالی جو ہے عزت اور سرخروئی نصیب فرمائے، اہل اسلام کی دشمنی میں جینے والوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کر دے یا اللہ۔ شہیدان کربلا کے صدقے اہل اسلام کی مخالفت میں جینے والوں کو نیست و نابود کر دے، اور ہم سب کو آپ کی بہتر بندگی کا حق ادا کرنے والے بنائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔